ये जो आम पार्टी जैसे बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र की बात बता रहे थे, वो पार्टीज आम पार्टीज होती हैं, मगर जो पार्टीज ये वाली रेप पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, अट्रैक्ट करके बच्चों को बुलाना वहां पे, और उनके दिमाग में एक तो जो पहले पार्टी अटेंड करते हैं उन्होंने वहां का जो माहौल देखा होता, गंदा माहौल है वहां का, और दूसरों को साथ में बहला फुसला के लेके जाना और उनकी जिंदगी बर्बाद करना। ये रेप पार्टी जो है ये बड़ी खतरनाक पार्टीज हैं, गलत है ये। मैं ये नहीं कहूंगा कि ड्रग माफिया चला रहे हैं, माफिया सिस्टम डिफरेंट आ गया है। पहले अपने ड्रग्स पकड़वा देते हैं, आम मार्केट में बेच नहीं पाते, मगर अपने ही ऑफिसर, जहां के जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो जब ड्रग्स पकड़ लेते हैं, वो किस तरीके से पार्टीज अरेंज करवाते हैं, ये आज चीज पकड़ी गई। ये बड़ी खतरनाक चीज है। बिल्कुल। चलिए ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो आज का यूथ है उसके ऊपर इसका कितना असर होता है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रेव पार्टीज पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं युवाओं के बीच रेव पार्टीज के बढ़ते प्रचलन की। अनुराग, आपसे फिर दोबारा शुरू करना चाहूंगी। इस सवाल से पहले लेट मी वार्न यू दैट rave parties are not only limited to, you know, as she also mentioned, that not to Delhi, Bombay, Pune, Goa or any other metro like Bangalore or something. अगर चंडीगढ़ से हार्ड जो पार्टी गोअर्स हैं उन्होंने कोई ऐसी पार्टी अटेंड करनी है तो it's just nearby. The town is Manali, Kasol. एंड अगर हम ये भी इस चीज को भी अगर अपने दिमाग से साइड पे निकालना चाहे कि ऐसा कुछ चंडीगढ़ में नहीं होता है, मगर चंडीगढ़ के लोगों के लिए या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लोगों के लिए ऐसी जगह है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इज इट डिफिकल्ट एंड रिस्की टू होल्ड सच पार्टीज इन चंडीगढ़? See, it all depends on the scale of holding such a party. If it has to be for people beyond 200 in number, then it's very difficult to have such a party in Chandigarh. Because then the police will get to know, the administration will get to know, more and more people will get to know, everybody would want to be there. Hence the crowd increases. Right. And then the risk is there of getting caught. Yeah. Now the problem starts is that everybody is attracted to luxuries in life. Be it an expensive watch, be it an expensive car. Right. The youth is attracted to luxuries. Cocaine, marijuana, ecstasy, all these are luxuries. Okay. Their demand is less, but the supply is enormous. Absolutely. वो तो आप भूल ही जाइए, सप्लाई तो ऐसे है उनकी, पाकिस्तान and Nepal border are nearby, so if anybody wants something, it is readily available. It was a luxury earlier, it is no longer a luxury now. Some people hold a party for their very close friends, be it 10 in number, 20 in number, 30 in number, in their private houses. They can organize a party in a club and nobody gets to know what is happening there. But once the number increases, then the problem of getting caught is there. Absolutely. So as in Chandigarh, you will not find a party which is beyond 200, 300 people, because then the risk is enormous. Right. But if somebody has a group which is so vast, and you have people who are coming in from other states, then you have places in and around Chandigarh to organize such parties. मुनीश, मनाली एक ऐसा टाउन है जो काफी फेमस है. It's known as a wild party town, and it is also famous for cheap local charas. Now, knowing the fact that such rave parties happen and there frequently, right, with loads of foreign tourists flowing in, so why the administration is kind of not busting those parties over there? No, administration is. That is the reason that most of the parties from Manali have shifted to Kinnaur now. Okay. You know, that has but become it's falling in the same state, right? It's falling in the same state. Yeah, but then, you know, see, the problem here is कि अगर हम वहाँ पे ये सब चीजें उगती हैं, वहाँ पे ये सब चीजें बनती हैं, अगर हम marijuana की बात करें तो वहाँ पे it's wild grass. Yeah, it's a wild grass and there's a place called Mulana which is the heaven of this thing. अब उन लोगों को अगर हम rehabilitate नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए कुछ और जरिया नहीं बनाएंगे उनके रहने के लिए, तो वो कुछ और नहीं करके सिर्फ यही करेंगे। मुझे हैरानी है, ये कोई ऐसा धंधा भी नहीं है जिससे स्टेट को प्रॉफिट हो रहा? नहीं, स्टेट को प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इट इज अ वोट बैंक, अल्टीमेटली इट इज अ वोट बैंक, नो। तो उन लोगों के लिए अगर कोई आदमी कुछ करेगा, उनको अगर सही रोजी रोटी का जरिया बनेगा उनका, तो वो ये काम ना करके जरूर ये सब चीजें छोड़ देंगे। और द
तब देयर विल बी अ स्कैसिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। राइट, विजय जी आपसे पूछना चाहूंगी, आजकल का जो यूथ है, देखा अगर हम कंपेयर करें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कट ऑफ परसेंटेज भी बहुत बढ़ गई है। 100% फिर वो वापस आते हैं 99% से नीचे आते हैं 98, 95, वहां पे आके एडमिशंस क्लोज हो जाती हैं। तो देखा जाए आजकल का जो यूथ है वो पढ़ भी बहुत रहा है, दे आर स्कोरिंग हाई एंड दे आर गोइंग इनटू बेटर प्रोफेशनल कॉलेजेस और अपने करियर की तरफ ओरिएंटेड है। वो अपना करियर बनाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं और एमएनसीज उनको सैलरीज भी बहुत हाई देते हैं और एंड दे एंड अप स्पेंडिंग more than half of that money on such parties, चाहे वो रेव हो चाहे नॉर्मल पार्टी हो। ये एटीट्यूड कहाँ तक सही है? नहीं, गलत है। देखिए, अगर आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो और उसके बाद अपना फ्यूचर इतना बुरी तरह लेके जाओगे कि ये सिर्फ आपके पैसे के ऊपर असर नहीं करेगा, आपकी सेहत के ऊपर और आपकी फैमिलीज के ऊपर असर करने वाला है। और उनमें काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो रिच फैमिलीज को बिलोंग नहीं करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि वो एक ऐसे प्रोफेशन में आ गए हैं जो उनको पे अच्छा कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उस पैसे को खुलेआम ऐसे नहीं, बहुत कम लोग हैं, इनकी तादाद बड़ी कम है जो गलत रास्तों पे जाने वाले। अच्छे बच्चे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक तरीके से रह रहे हैं, मगर जो इनको गुमराह करने वाले, मैं अभी जैसे ये बता रहे थे, भी मनाली से शिफ्ट हो गया, कन्नौर की तरफ शिफ्ट हो गया। डर चरस गांजे का इतना डर नहीं है, शराब का इतना डर नहीं है, क्योंकि जैसे बताया कि गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है शराब का, इतनी शराब बिक रही है, जितने ठेके खुले हुए यहाँ पे। सबसे बड़ी डरने वाली जो बात है वो दूसरे ड्रग्स, जो कोकीन, हेरोइन, ऐसे जो कैलिफोर्निया ड्रॉप्स ऐसे लगा के, ये चीजें जो हैं ये खतरनाक चीजें जो आने वाले सिर्फ बच्चों को नहीं खराब करने वाले थे, आने वाली जनरेशन उनकी खराब होने वाली है। अब मेरे ख्याल में, मेरे को लगता है कि आने वाली जनरेशन ही नहीं आ पाएगी अगर ऐसे बच्चे ऐसे ड्रग्स लेने शुरू कर देंगे, तो उनकी आने वाली जनरेशन पे बड़ा असर पड़ने वाला है, जनरेशन ही खत्म हो रही है। मेरे को बहुत बड़ी साजिश लग रही है हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ड्रग्स वाले भेज के भी। हिंदुस्तान की जो यहाँ के लोगों की पॉपुलेशन है उसके ऊपर गलत असर डाल के इसको, पॉपुलेशन को खराब करना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। अल्टीमेटली सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना जो यूथ है उसको बहुत संभाल के रखें। ऑलरेडी ये कॉल सेंटर्स और ये सब चीजों से हमारा यूथ थोड़ा सा वैसे ही ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आ गई है, तो वो गलत तरफ चल पड़ा है थोड़ा सा। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ कि उनको ठीक रास्ते पे लाना है, लेकिन रास्ते में लाने के लिए सख्ती हर बार जरूरी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते उनको कि आप पार्टी ना कीजिए, आप एंजॉय मत करिए। वो सख्ती करना बहुत हर बार जरूरी नहीं होता, उनको प्यार से भी समझाया जा सकता है और भी बहुत तरीके हैं जिससे समझाया जा सकता है। राइट, सगुना आप इस पे क्या विचार रखते हैं? मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी। आई डोंट थिंक सिचुएशन इतनी ज्यादा होपलेस या इतनी ज्यादा ड्रास्टिक है कि मतलब जैसे विजय जी ने कहा कि it's come to a generation getting wiped out. I don't think it's that drastic. I think we're making too much of it. I would say that even if in a city, as on date, if we talk about Chandigarh, let us say that there are, out of every 100 people who party, I think 1 out of 100 would be a person who would be actually going out and taking drugs. I really don't think it's more than that, because I think it's जनरेशन की बात कर रहा था। प्लीज no. पता क्या बात है, अभी आप देखिए जो लोग स्मैक ले रहे हैं उनकी फैमिलीज के बारे देखो, वो नई परिवार के अंदर रह पा रहे और अपना परिवार का जो उनका सिस्टम है वो नहीं अडॉप्ट कर पा रहे। और उस हिसाब से देखो, अगर जैसे स्मैक पीनी शुरू कर दी, अभी तो स्मैक है, बाकी दूसरी जो ड्रग्स आने वाली हैं, इनके जो केमिकल रिएक्शन आपके शरीर के अंदर, आज तो बड़ी अच्छी बात है इन्होंने ड्रग्स के ऊपर ये वाला कार्यक्रम करवा दिया। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि जो आप ड्रग्स ले रहे हो, ड्रग्स ये आपके आने वाले समय के अंदर आपके शरीर के अंदर क्या क्या इफेक्ट डालने वाले हैं। ये मैं आपको साइंटिफिक तरीके की जो बातें ना वो बता रहा हूँ, ये वैसे बातें नहीं कह रहा। और वैसे सोसाइटी के ऊपर असर होता है, आपकी फैमिलीज के ऊपर होता है। आप पढ़ लिख के एक अच्छी जगह पे काम करने लगते हो, आप अच्छा पैसा कमाते हो, आपके पास खुला खर्च करने के लिए इतना पैसा हो जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हो। और खुदा न खास्ता अगर आप ऐसी किसी
क्या कहते हैं लत के आदी हो जाते हो तो पहले तो आपकी नौकरी जाती है, आपकी सेहत जाती है, फिर आपके आपकी जो फैमिली है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो आई मीन अगर हम अब नहीं इसके बारे में सोचेंगे तो कब सोचेंगे, ये मेरा सवाल है। नहीं, सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए, एंड वी नीड टू रियली टेक सम ड्रास्टिक एक्शंस, बट आई फील वी नीड टू जस्ट स्टेप बैक अ लिटिल बिट एंड सी वेयर दिस प्रॉब्लम इज एमिनेटिंग फ्रॉम। द प्रॉब्लम इज एमिनेटिंग, सी ड्रग्स हैव ऑलवेज बीन देयर, राइट? इट्स नॉट दैट कि लोगों को, ठीक है, आजकल के जमाने में इफ यू टॉक अबाउट यू नो दीज कैलिफोर्नियन ड्रॉप्स और व्हाटएवर, ऑफ कोर्स दीज आर नाउ मोर रेडिली अवेलेबल। व्हाई हैव दे कम टू इंडिया? इज बिकॉज इंडिया नाउ इज मोर डिस्पोजेबल इनकम। अभी तक इंडिया में इसलिए नहीं आ रहे थे बिकॉज यंगस्टर्स के पास पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए। अब यंगस्टर्स के पास पैसे हैं तो उनके पास खरीदने के लिए है, बट जो हमारे पास मारिजुआना है, जो हमारी चरस है, गांजा है, वो तो हमारे पास सालों से उग रहा है। Why is it कि अभी ही ज्यादा लोगों ने लेना शुरू कर दिया? Are we talking about, one, of course, the population has increased. Secondly, there's a lot of distress in the youth today. That urge to earn more money is there. So it's become a vicious cycle. I think the problem lies not in trying to tackle it from the top. The problem, I think the only solution is in breaking this cycle. Competition कहीं कभी जमाना था कि सिर्फ एग्जाम्स तक कंपटीशन होता था, आजकल देखा जाए तो हर कदम पे आपको look at the discrepancy, competition फेस करना पड़ता है। Look at the discrepancy between the haves and the have-nots. जिसके पास नहीं है, I mean, एक गांव से एक यूथ आता है कॉलेज में और देखता है कि मेरा जो काउंटर पार्ट जो मेरे साथ में बैठा है उसने लिवाइस पहनी है, नाइकी के शूज पहने हैं, और अगर मैंने नहीं पहने हैं तो मुझे छेड़ रहा है। लुक एट द स्ट्रेस इन हिज माइंड। सो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू? इज टू गो एंड जस्ट गो इनटू अ ड्रीम वर्ल्ड वेयर नथिंग अफेक्ट्स हिम एनीमोर। सगुना, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। मैं सबसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, अनुराग आपसे शुरू करती हूँ, कि हमें एक लकीर कहाँ खींचनी चाहिए? वेयर शुड वी ड्रॉ अ लाइन? The first part is that it is not essential to kill the problem, but to cure the problem. So the problem, to cure the problem, it has to start from the grassroots level. Education has to be imparted. More counseling has to be done. Things which are easily available should not be easily available. So a lot of awareness campaigns should also be there. Through media, media propagates everything. And then plus you should learn how to be responsible, the youth as well as the administration. It is for yourself, it is your life, it is your health, it is in your hand. Either you make it or you break it. Right. So जी, विजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा तो यही है कि जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, बहुत उनके ऊपर सख्त कानून होने चाहिए, और मीडिया की तरफ से अच्छे तरीके से एजुकेट करें बच्चों को भी। ये गलत काम है भी, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। ये आने वाले, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जनरेशन के ऊपर असर करेंगे, सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं, पूरी जनरेशन के ऊपर असर करेंगे। ऐसी चीजों को रोकना चाहिए। मनीष, आपको लगता है कि इसके रिलेटेड जो लॉज हैं उनको और स्ट्रिक्ट और स्टर्न होना चाहिए? See, as I said, कि strictness is not I mean, it is not the way how you tackle things. It is the education which is very important. But अगर आप पकड़े जाओ तो क्या आपके साथ लीनियंसी बरतनी चाहिए? No, उसको समझाया जा सकता है, उसको हर तरह से। आप ये भी तो सोचिए कि जो वो आदमी जो उसको अफोर्ड कर रहा है वो खुद कमा कर रहा है, खुद करके सब कुछ खुद करके कर रहा है। सो दैट मींस ही इज एन इंटेलिजेंट गाय। वो थोड़ा भटका हुआ है, तो उसको रास्ते पे लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगर जो उनको उस राह पे लेकर जाते हैं, उनके साथ तो बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज होने चाहिए। उनको तो आई फील कि वो तो एक किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, उनको तो उनके ऊपर तो मतलब हर तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, सगुना। I am a huge believer in Spider-Man's line, with huge power comes huge responsibility. I think if we can drill this into the youth today, I think we would have won the battle. Right. आप सबका इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मौज मस्ती करना युवाओं का हक है, उन्हें ऐसे करने से शायद रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौज मस्ती की आड़ में नशे को गले लगाएं। रेव पार्टीज एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रही हैं। इन्हें रोकने के लिए जितनी मुस्तैदी प्रशासन को दिखानी होगी, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। सवाल 1 या 100 जिंदगियों का नहीं, पूरे समाज का है। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।